हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर यानी राजनीति विज्ञान के चैप्टर जो हम करेंगे 9, जिसमें हम आज करेंगे इमरजेंसी प्रोविजन यानी आपातकालीन प्रावधान। देखिए, ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हो, चाहे एनआईएस में पढ़ते हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके पास सिलेबस में टॉपिक में इमरजेंसी प्रोविजन है तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और महत्वपूर्ण तो इसलिए भी है क्योंकि आपके समक्ष जो त्रिपाण स्टडी सेंटर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रेजेंट करने की कोशिश किया जाता है, और साथ में डिस्प्ले भी इंग्लिश हिंदी दोनों में ही शब्द होते हैं जहाँ से लिखना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, कि वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों, एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों, ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today our most important chapter here is emergency is a provision, and here chapter is an important topic emergency causing by the war, external aggression etc. There is emergency causing by the war, external aggression etc. Here the provision has been made in the constitution for the dealing with the extraordinary situations that may be a threat to place of security, stability and governance of the country or part and thereof. There is the three types of extraordinary crisis situation that are the investigated, and the first when there is a war or external aggressions has been to the community or there is threat of the same, or if the internal disturbance of amounting to be armed is rebellions take place. Second, when the is become impossible for the government of the state to be carry on the accordance with the constitutions. And third, if there is credit of financial stability of the country is threatened, in each case of the president may be issue or proclamations with the varying consequence. In this is a section we will be discuss the emergency causing by the war etc. The popularly known as the national emergency. Our next topic is a proclamation of the national emergency, article 352. There is the most important is the proclamations. The Constitution of the India has provided for the imposition of the emergency causing by a war and external aggressions or internal rebellion. This is described as a national emergency. These types of emergency can be declared by a president of India if he certifies that a situation is very grave and security of India are apart of threats of the likely to be a threats either by war, external aggressions are by army to rebellions within a country. The president can be issued such as a proclamations even on the as a ground of threat, wars and aggressions. According to 44 amendment of Constitution, the President can declare such an emergency only if the Cabinet recommended in a written to do so. Such as the proclamations of emergency has to be approved by both the House of Parliament. Is a absolute is the majority of the total member of House as well as 2/3 is the majorities of their member present and voting within 1 month. Otherwise, the proclamations are cease of the operate in case the Lok Sabha stand to dissolve at the time of proclamation of emergency or not in a season. It has to be approved by the Rajya Sabha within 1 month and the later one by their Lok Sabha also is within the 1 month of the start of the next sessions.
One approval by there is the Parliament. The emergency remain in the force of a period of 6 months from the date of the is the proclamations. In case it is to be extended by the beyond 6 months, another is a period. Resolution has to be passed by the Parliament. In this way, such a emergency continue indefinitely, but it is the situation improved to the emergency can be revoked by another is a proclamation by there is a president of India. The 44th Amendment of the Constitution provides that 10% of the more members of Lok Sabha can be is requisitions and meeting of the Lok Sabha, and that is a meeting. It can be disapproved or revokes their emergency by a simple majority. In such a case, emergency will be immediately become a imperatives. And the national emergency has been declared in our country 3 times so far. And for the time first time is emergency was declared on 26 October 1962 after China attacked our border in the northeast. And this national emergency lasted till of 10 January 1969 and the long after the hostility is cessed. And second time it was declared on the 3 December 1971 in the work of the second Indian-Pakistan War and was lifted on 21 March 1977. Well, the second emergency on the base of external aggressions was the Operation Third National Emergency. It's called internal emergency was imposed of 25th is June 1975. This emergency was declared on the ground of internal disturbance. Internal disturbance here justify in connection with the emergency desire that the fact that the government was already armed with the power provided during their second national emergency of 1971 and which was still is a operation. The our next topic is effect of the national emergency. The declaration of national emergency has a far-reaching effect both on the right of the individual and autonomies of the state in the following manner. The first here, the most significant effect is that the federal form of the constitution change into the unitary. There is the authorities of the center increase and parliament assume their power to make law for the entire country or any part of thereof, even the respect of the subject and mentioned in the state list. And second, the President of India can issue the direction to the state as the manner in which their executive power of the state is to be is exercised. And the next year, during this period, the Lok Sabha can be extended its tenure by the period of 1 year at a time, but the same cannot be extended beyond 6 months after the is a proclamations and in case they operate. The tenures of the state is assemblies can also be extended in the same manner. The next year, during the emergency, the president is empowered by the modify the provision regarding a distribution of the revenues between to the union and the state. And the next year, the fundamental right under Article 90 about which you have already learned are automatically as suspended and the suspension of continue till the end of the emergency. But according to the 44th Amendment is a freedoms list for Article 19 can be suspended only case of the proclamations on the ground of war or external aggressions. For the above discussion, it has become quite clear that emergency not only suspend the autonomies of the state but also convert the federal statutes of Indian into the unitary one. And still is considered is necessary as the equips a union government with the vast powers of the cops up with their abnormal situation. The exigencies of the situation prevailing in the period of 1975 to 77 and necessitated is a content changes in the constitution regarding emergency is a provision and therefore the 44 amendments meant and was passed on 30th April 1977 to the strength that democratic feature of the Indian constitution to protect citizens right even during to the national emergency.
दोस्तों हमारा जो यहाँ पर टॉपिक आया है आपातकालीन। देखिए आपातकाल जो होता है वो सिचुएशन होता है जब देश जो होता है कंट्रोल से बाहर चली जाती है, तब ये प्रावधान है कि हम इसमें जो है आपातकालीन घोषणा करके यानी इमरजेंसी की घोषणा करके जो है देश को जो है बचाना होता है। तो युद्ध एवं बाहरी आक्रमण के कारण जो है आपातकाल, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा। जिस दिन से जो है भारत स्वतंत्र हुआ है, हमें देश के सामने मौजूद अनेक समस्याओं का सामना करने के लिए युद्ध स्तर पर जो है हमें संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास बहुत ही संसाधनों की कमी थी। जितना हमें उन्हें हल करने का प्रयास किया उतने ही वो बढ़ती रही, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। इसके परिणाम स्वरूप भारत उन्नति के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ता चला गया। अचानक एक झटका तब लगा जब हमारे एक पड़ोसी देश चीन ने 1962 में हमारी उत्तरी सीमाओं पर आक्रमण करके देश की सुरक्षा को चुनौती दी। केंद्र सरकार ने इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए असाधारण व्यक्तियों से अपने को जो है लैस कर लिया, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। देश की सुरक्षा, एकता और अस्तित्व की रक्षा के लिए भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थिति को निपटने के लिए एक विशेष शक्ति प्रदान की गई। कहते हैं अगर बात देखा जाए कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद जो है 352 की घोषणा, यानी ये शक्ति जो था राष्ट्रपति को दिया गया, जिसके कारण वो जो है राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा किया जा सकता है। क्योंकि जब ऐसी बाहरी आक्रमण हमारे देश पे होता है तो इस कंडीशन में जो है लोगों को सुरक्षा करना सबसे बड़ी दायित्व होती है। तो ये उस समय होता है जहाँ पर लोगों को जो है सुरक्षा करने के हर संभव कोशिश किया जाता है। कहते भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का प्रावधान है। ऐसी घोषणा भारत का राष्ट्रपति कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाए कि स्थिति बहुत विकट है तथा भारत तथा उसके किसी भी भाग को सुरक्षा खतरे में है। इसमें अगर हम बात देखें तो युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण, देश के जो है अंतर सशस्त्र विद्रोह के कारण ध्यान रहेगी राष्ट्रपति यह घोषणा ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले भी कर सकते हैं। यानी कहते हैं इमरजेंसी की पावर राष्ट्रपति को उस समय दी गई है जब जो है युद्ध बाहरी आक्रमण हो और देश में जो लगे कि यहाँ पर जो है सब कुछ सही नहीं है। तो इस परिस्थिति में जो है राष्ट्रपति यहाँ पर इमरजेंसी लागू कर सकता है। यानी 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति ऐसी संकटकालीन घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे ही कर सकता है। कहते हैं ये सिफारिश जो होता है मंत्रिमंडल के लिखित जो है दस्तावेज पे ही किया जा सकता है, जैसे कि इंदिरा गांधी ने भी किया था कि इमरजेंसी के लागू रातों रात करवाई गई थी। तो ये बड़ी बात थी जो कि बहुत ज़रूरी भी था। कहते हैं ऐसी जो है संकटकालीन घोषणा की पुष्टि संसद के दोनों सदनों के द्वारा 1 मास के अंदर होना अनिवार्य होता है, नहीं तो वो घोषणा स्वयं ही समाप्त हो जाती है। संकटकालीन घोषणा के इस समय यदि लोकसभा भंग है अथवा उसका अधिवेशन नहीं चल रहा है तो इसकी पुष्टि राज्यसभा द्वारा 1 महीने के अंदर होना होता है तथा बाद में लोकसभा द्वारा जो अधिवेशन जो है एक होने के 1 मास बाद अंदर ही हो जाना चाहिए। यानी 1 मास के अंदर होना ये सुनिश्चित किया गया था। संसद द्वारा एक बार पुष्टि हो जाने पर आपातकाल का प्रभाव घोषणा की तिथि से 6 महीने तक रहता है। यदि इसके 6 महीने से आगे बढ़ाना है तो संसद द्वारा दूसरा प्रस्ताव पास किया जाना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहती है, परंतु स्थिति में सुधार होने पर राष्ट्रपति द्वारा घोषणा करने से जो है आपातकाल समाप्त भी हो सकता है। यानी यहाँ पर सारी शक्ति जो है राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। संविधान के 44वें संशोधन के अनुसार लोकसभा के 10% या अधिक सदस्य लोकसभा के अधिवेशन की मांग भी कर सकते हैं तथा उस अधिवेशन में साधारण बहुमत द्वारा आपातकाल को रद्द अथवा समाप्त भी किया जा सकता है। ये प्रावधान निश्चित किया गया था। कहते हैं हमारे देश में 3 बार जो है राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा की जा चुकी है। पहली बार जो है 26 अक्टूबर 1962 को आपातकालीन घोषणा की गई थी, जब चीन ने हमारी उत्तर पूर्वी की सीमाओं पर आक्रमण किया था। तो इस समय जो है पूरे भारत में आपातकालीन घोषणा किया गया था और यह राष्ट्रीय संकट जो था 10 जनवरी जो है 1968 तक जारी रहा। यानी काफ़ी समय तक देखा जाए तो ये जारी रहा, हालांकि तनाव बहुत पहले समाप्त हो गया था। उसके पश्चात दूसरी बार इसकी घोषणा जो है दूसरे जो है भारत पाक युद्ध के समय 3 दिसंबर 1971 को की गई तथा यह 21 मार्च 1977 को समाप्त हो गई। कहते हैं बाहरी आक्रमण के आधार पर यह आपातकाल चल ही रहा था, परंतु उसी समय 25 जून 1975 को तीसरी आपातकालीन घोषणा कर दी गई। यह घोषणा आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर की गई थी, जिसके लागू करने का कोई औचित्य नहीं था। सरकार के पास
1971 के दूसरे राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति पहले से ही थी, इसलिए जो है आपातकालीन लगाना बहुत ही सरल हो गया था। कहते हैं भारत में सिर्फ 3 बार लगाई गई, लेकिन तीनों बार जो थी तो परिस्थिति खराब थी, जो कि बहुत काफ़ी कंट्रोल से बाहर थी, लेकिन फिर भी हमारे जो है सूझबूझ की वजह से जो है ये काफ़ी जो है कंट्रोल में आ गया था। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव देखिए, इसमें जो होता है जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाई जाती है उसका क्या प्रभाव होता है, आखिर इसके दौरान क्या चीज़ें जरूरी होती है राष्ट्रीय के लिए। कहते हैं राष्ट्रीय जो है संकट की घोषणा के व्यक्तियों के अधिकार व राज्य के जो है दूरगामी प्रभाव पड़ता है। आपने पढ़ा भी था कि जब ये आपातकालीन घोषणा की जाती है तो हमारा जो अधिकार होता है सारे के सारे जो होते हैं ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि संघीय भी संविधान का स्वरूप जो है एकात्मक में बदल जाता है और केंद्र की सत्ता में वृद्धि हो जाती है। यानी देखा जाए तो सारे के सारे जो होता है जो स्वरूप एकात्मक में बदल जाता है, कोई भी जो स्टेट नहीं रह जाता, संघीय जो है संविधान खत्म हो जाती है और केंद्र के पास सारी सत्ता जो है चली जाती है। संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर भी संपूर्ण देश अथवा उसके किसी भी भाग के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त हो जाती है। भारत का राष्ट्रपति राज्यों को कार्यपालिका संबंधी शक्ति के प्रयोग के तरीके के बारे में निर्देश देने लग जाता है। तो ये काफ़ी जो है इसका प्रभाव देखने को मिलता है। इस जो है आपातकाल के दौरान लोकसभा एक बार में अपने जो है कार्यालय में 1 वर्ष तक की वृद्धि कर भी सकता है, परंतु घोषणा का प्रभाव समाप्त होने पर 6 महीने से अधिक की वृद्धि नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार राज्य के विधानमंडलों का कार्यकाल भी बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को केंद्र तथा राज्य के बीच राष्ट्र के बंटवारे से संबंधी प्रावधानों भी जो है फेरबदल करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। तो ये सारे के सारी चीज़ होती है आपातकालीन के दौरान जो होती है। लेकिन कहते हैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आने वाली मौलिक अधिकार जिनके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, स्वतः ही स्थगित हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। यानी पहले जो जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए थे उस सारे के सारे मौलिक अधिकार जो होते हैं खत्म हो जाते हैं, सिर्फ जीने का अधिकार ही रह जाता है। यह स्थगित आपातकाल की समाप्ति तक जारी रहता है, परंतु 44वें संशोधन के अनुसार केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर ही इन स्वतंत्रताओं को स्थगित किया जा सकता है। कहते हैं अगर हमने ऊपर जो बातें किया है इससे ये बात साफ शब्दों में स्पष्ट हो रहा है कि संकट काल में केवल राज्य की स्वायत्तता ही स्थगित नहीं होती है, बल्कि भारतीय संघीय संरचना भी एकात्मक ढांचों में बदल जाती है। इससे आवश्यक माना जाता है जिससे केंद्र सरकार की असामान्य स्थिति का जो है सामना करने के लिए पर्याप्त शक्ति मिल सके। परंतु 25 जून 1975 घोषित जो है राष्ट्रीय संकट के समय क्या हुआ, कुछ आलोचकों का कहना है कि इस काल में सत्ता का दुरुपयोग हुआ। कहते हैं लोकतंत्री परंपराओं का अतिक्रमण हुआ और विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, चुनाव टाल दिए गए और लोकसभा की अवधि बढ़ा दी गई तथा प्रेस का जो है गला घोटा गया। सत्ता के इसी दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप 1970 में जनता सरकार का गठन भी हुआ तथा उससे वह संविधान संशोधित विधेयक पास भी कराया गया, जिसमें संकटकालीन शक्तियों के मनमाने प्रयोग के विरुद्ध अनेकों प्रावधान जोड़े गए। The next topic is emergency due to the failure of constitutional is a machinery in a state. What do you mean to the emergency due to the failure of constitutional machinery in a state? It is a duty of the union government of ensure that is the governance of state is a carry on is a accordance with the provision of the constitutions. Under Article 356, the president may be issued the is a proclamations of impose emergency is a state if he certifies on receipt of a report from the governor of the state or otherwise that a situation has the arisen under which the government of the state cannot be carried on the smoothly. In such a situations is a proclamations of emergency by the president is called is a proclamations on account of there is a failure. A breakdown of the constitutional machineries in a popular language it is called the presidential rule. Like a national emergency such as the proclamations is a must also be a place before both the houses of parliament approval. In this case, approval must be given within the 2 months. Otherwise, the is a proclamations is caused by the operate. If approved by their parliament, there are proclamation remaining the valid for the 6 months at the time. It can be extended for another 6 months, but not is a behind
1 years. However, emergency is a state can be extended beyond 1 year if 1 year if is a first year of national emergency already is a operations, or if, and the second, the election commissions is a certifies that election to that state assembly cannot be held. These types of emergency has been imposed in the most of the state at the one time or the other for a number of time. It was in 1951 that this types of emergency was imposed for the first time in the Punjab state. In 1957, the Kerala state was put under the presidential's rule. There has been to the many cases of the misuse of the constitutional breakdown. For example, in the 1977, when the is a Janta Party come into power at the center, the Congress Party was almost wiped out of the North Indian state. One, this is an excuse, Desai government at the center dismissed and the nine state government where a Congress was still in a power. This action of is a Moharaj's Desai. Morarji Desai's government was strongly criticized by the Congress of other. But when to 1980, after Janta government has lost a power, Congress come back to the power at the center under Mrs. Gandhi is a leadership and the dismissed all then the Janta Party state government. And in both cases there was no failure of the constitutional machinery, but action were taken only on the political ground. In 1986, emergency was imposed on Jammu and Kashmir due to the terrorism and insurgency in all. There are more than 100 times that emergency has been imposed in a various state for one reasons of other. However, after 1995, the use of the provision has errors been made. The next year effect of the impositions of presidential as a rule in a state. The declaration of emergency due to the breakdown of constitutional machinery in a state has the following fact. The president can assume to himself any of the functions of the state as a government, or he may be waste all or any of those as a function with the governors or any other executive authorities. And next year the president may be dissolve the state legislative assembly or put it under suspensions. He may be authorized to the parliament to make law as a behalf of the state legislatures. And the president can be make any other is an incident or the consequentially is a provision necessary to give effect to be object of proclamation. The way of presidentials as a rule was imposed on the various occasions has arising many questions. At the time of situation really demanded it, but at the other time, presidential as a rule was imposed is a purely on the political ground to be a top pulse their missionaries, and the format to the party different from one at the center. Even if that is a particular party is enjoyed a majority in their legislatives assemble and suspended to the dissolving is the assemblies and not giving a chance to be other political party to be form a government in a state has been due to the is a partisans and the considerations of the union government, which article 356 has been clear misused. In the view of the above fact, the article 356 has become a very is a controversial in the spirit of there is a safeguard provided by the 44 is the Amendment Act, and this provision has been to the alleged to be a misuse by the union government. That is why there is a demanded either for the declarations are making to provision in the constitution to be restricted to misuse of the articles. The is a Sarkarai commissions which was the appointed to be review the center state relation also recommended that article 356 should be used only as a last resort. That is why there is a demanded either for it is a declarations are making the provision in the constitution to restrict the misuse of the article. The Sarkari commissions which was appointed to be reviews their center state relation also recommended that
Article 356 should be used only a last resort. The Commission also suggested that the State Legislative Assembly should not be dissolved unless the proclamations is approval by the Parliament. And if the further suggested that all the possibility of the forming a alternative government should be fully exposed before the center impose emergency in a state on ground of the breakdown of constitutional machinery. The Supreme Court held in the Bhumai's case that is assembly may not be dissolved till the is proclamations are approved by their parliament. One of few occasions use and such as when to the Gujarat government recommended use of the Article 356 is Uttar Pradesh. The President returned it there is recommendance for the reconsiderations. The Union government took the hint and dropped the proposal. देखा जाए तो दोस्तों ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से उत्पन्न आपातकालीन, देखिए ये तो हमारा होता है घरेलू मामला जिसमें जो है संवैधानिक तंत्र जब विफल हो जाता है तो उस समय जो है आपातकालीन घोषणा की जाती है और इसका वर्णन अनुच्छेद 356 में है। ठीक है, यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का प्रशासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलाया जा रहा है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य में आपातकालीन घोषणा जारी कर सकते हैं यदि वह राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर या किसी अन्य प्रकार से संतुष्टि हो जाए कि वह ऐसी स्थिति हो गई है जिससे राज्य का प्रशासन जो है विधि पूर्वक नहीं चलाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकालीन घोषणा करके राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र की विफलता को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। आम बोलचाल में से राष्ट्रपति शासन भी कहा जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकालीन की तरह इस दूसरी प्रकार की आपातकालीन घोषणा को भी संसद के दोनों सदनों के सामने 2 महीने के अंदर पुष्टि के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य माना जाता है। संसद द्वारा 2 महीने के अंदर पुष्टि न होने पर वह स्वयं ही समाप्त भी हो जाता है। संसद द्वारा पास होने पर जो है घोषणा एक बार में 6 मास तक वैध रहती है। इसको अलग 6 महीने के लिए और भी बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस अवधि को 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है यदि राष्ट्रपति जो है अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल पहले ही जारी हो। यानी राष्ट्रपति ने पहले ही अगर आपातकालीन की घोषणा कर चुके हैं तो ये राष्ट्रीय आपातकाल पहले की जारी हो तो ये चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि राज्य विधानमंडल का चुनाव करना संभव है या नहीं, यानी चुनाव होगा कि नहीं, ये सारे जो है दबदबा होता है चुनाव आयोग के पास और वही प्रमाणित करता है कि ये चुनाव होगा या नहीं। इस प्रकार के आपातकाल को अधिकांश राज्य में समय समय पर अनेक बार लागू भी किया गया था। 1951 में पहली बार पंजाब राज्य में इस प्रकार का आपातकाल लागू किया गया था और 1957 में यानी 1957 में केवल राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, यानी केरल में ही जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और 1970 में पूरे 9 राज्य में एक साथ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और यह कदम मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने उठाया था। कांग्रेस ने इसकी कड़ी आलोचना भी किया था और 1980 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो जिन राज्यों में जनता पार्टी बहुमत से थी वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कहते हैं 1986 में जो है उग्रवाद और आंतरिक विद्रोह के कारण जम्मू व कश्मीर में आपातकालीन घोषणा की गई थी और कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 बार से भी अधिक भिन्न भिन्न राज्यों में एक साथ दूसरे कारण से आपातकाल लागू हो चुकी है। उसके पश्चात हमारा टॉपिक आता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के क्या प्रभाव पड़ते हैं। कहते हैं राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण घोषित आपातकाल के जो है कुछ प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। पहला तो यही प्रभाव मिलता है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्य अथवा किसी एक कार्य को अपने हाथों में ले सकता है अथवा उनको राज्यपाल या किसी अन्य कार्य अधिकारी को सौंप भी सकता है। राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को स्थगित अथवा भंग भी कर सकता है और वह संसद के राज्य विधानमंडलों के साथ स्थान पर कानून निर्माण के लिए जो है अधिकृत भी कर सकता है। घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति कोई अन्य आवश्यक प्रावधान भी लागू यहाँ पर कर सकता है। तो सारे जो है राष्ट्रपति के शासन लागू करने का प्रावधान किया गया है।
जिस प्रकार अनेक अवसरों पर राष्ट्रपति शासन लागू किया भी गया था, उसे अनेक प्रश्न को जन्म भी दिया है। कई बार तो परिस्थिति की मांग थी और कई अवसरों पर राष्ट्रपति शासन केवल राजनीतिक आधार पर केंद्र से विभिन्न राजनीतिक दल की सरकार को गिराने के लिए लागू किया गया था। कहते हैं हमारी राजनीति में ये सब भी बहुत आसान तरीक़ों से किया जा सकता है। किसी को सरकार गिराने के लिए इस तरह के प्रावधान भी किया जाता है। यद्यपि उस दल का भी विधान सभा के पुण्य बहुमत था। विधानसभाओं के स्थगित अथवा भंग करने तथा अन्य राजनीतिक दलों को राज्य में सरकारों के निर्माण का अवसर न देना केंद्रीय सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण ही ऐसा हुआ है, जिसके लिए अनुच्छेद 356 का सभ्यता दुरुपयोग हुआ है। यानी कहते हैं कुछ रूल रेगुलेशन बनाई जाती है तो कुछ रूल रेगुलेशन का उसका दुरुपयोग करना भी लोग सीख लेते हैं। तो आज जो कहते हैं बहुत से जो आपातकालीन लगाई गई थी, सिर्फ अपने रोटी सेकने के लिए लगाई गई थी। इसका कोई भी मेन आधार नहीं थी इसमें। अगर बात करें उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का अनुच्छेद अगर 356 विविधाग्रस्त रहा है तो इसका अत्यधिक दुरुपयोग भी किया गया है। कहते हैं 44वें संशोधन अधिनियम में दिए गए सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद इस प्रावधान का केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग किए जाने का आरोप भी लगाया गया था। इसी कारण इस अनुच्छेद को संविधान से हटाने अथवा इसके दुरुपयोग को समाप्त करने का प्रावधान बनाने की मांग सामने आई है। सरकारी आयोग ने जिसे केंद्र राज्य प्रबंधन का पुण्य निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया गया था, अनुच्छेद 356 के अंतिम हथियार के रूप में प्रयोग करने की सिफारिश की गई थी और ये ऐसा होना भी चाहिए। कहते हैं आपातकालीन ऐसे ना हो कि हर समय लगा दी जाए। ठीक है, आपातकालीन तब लगाना चाहिए जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाता है। आयोग के सुझाव के अनुसार राज्य विधानसभा के उस समय भंग न किया जाए जब तक संसद आपातकालीन घोषणा को स्वीकार न करे। सरकारी आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि केंद्र द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकालीन घोषणा से पहले वैकल्पिक सरकार के निर्माण की सभी संभावनाओं के लिए सूचित प्रयास अत्यंत आवश्यक होती है। तो कहते हैं दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आपातकालीन जैसी शक्तियाँ हमें राष्ट्रपति के पास दिए हैं, तो उसका कारण आधार यही होता है कि हम ऐसे संकटों में देश की रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन कई लोग जो होते हैं देश की रक्षा की जगह अपना महत्व निकालने के लिए ऐसे कार्य किए हैं जो कि सही भी नहीं है। कई टाइम तो आपातकालीन सिर्फ बेमतलब की लगाई गई थी, अपनी प्रभुसत्ता बनाने के लिए लगाई गई थी, जो देश के लिए बहुत ही गलत साबित हुआ और देश के काफ़ी नुकसान भी हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कहते हैं आपातकालीन की शक्ति मिली है तो जब प्रावधान हो, जब जरूरी हो तभी इसका प्रयोग करना चाहिए। The one next topic is a financial emergency here. The financial emergency is the most important. The third types of emergency is a financial emergency. The provided under Article 360, and it provides that it is a president is certified that a financial stability or credit of Indian or any of its a part it's a danger. He may be declared a state financial emergency. Like the other two types of emergency, it has also been approved by the Parliament. It must be approved by their both House of Parliament within the 2 months. Financial emergency can separate as long as there are situation demand and may be revoked by the subsequent of proclamations. The effects of financial emergency, there is the most important. The proclamations of financial emergency may be have to flowing consequence. The union government may be give to direction to any of the state regarding a financial matter. And the second, the president may be asked the state to be reduce the salaries and allowances of all or any class of person is a government service. The president may be asked the state to be resolve all the money bills for the considerations of parliament after they has been to the pass by the state legislature. And the president may be also give a direction for the reductions of salaries and allowances of the central government employees, including the judge of the Supreme Court and the High Court. तो यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है वित्तीय संकट, यानी यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगाया जाता है। कहते हैं इसको अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लिया गया है। तीनों प्रकार के आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित वित्तीय संकट कहलाता है। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी भी भाग की वित्तीय स्थिरता या
साख को खतरा है तो वह वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। अन्य दो प्रकार के आपातकाल की भांति इसको भी लागू होने के 2 मास के अंदर संसद की स्वीकृति भी मिलना आवश्यक होता है। जब तक स्थिति में सुधार न हो तब तक संकट काल जारी रह सकता है तथा इसको बाद में घोषणा द्वारा समाप्त भी किया जा सकता है। तो कहते हैं वित्तीय संकट जो है बहुत ही बुरा स्थिति में लगाई जाती है। अगर आपने देखा होगा श्रीलंका का जब वित्तीय संकट पड़ा था तो बहुत ही तहस नहस और बहुत ही नुकसान देखने को भी मिला था। कहते हैं वित्तीय संकट के क्या प्रभाव हो सकते हैं। देखिए, केंद्र सरकार किसी भी राज्य को वित्तीय मामलों में संबंधी निर्देश दिया जा सकता है। राष्ट्रपति राज्य के सरकारी कर्मचारी के वेतन व भत्तों को कम करने की सिफारिश भी किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित वित्तीय विधेयकों की संसद में विचारों के लिए राष्ट्रपति राज्य की सुरक्षा रखने के लिए भी कहा जा सकता है। यानी ये सारे प्रभाव हैं। अगर देखा जाए राष्ट्रपति केंद्रीय कर्मचारी जिनमें उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शामिल हैं, उनके भी वेतन और भत्ते को कम करने का निर्देश दिया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो प्रावधान आते हैं वित्तीय संकट के अंतर्गत आता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण था जिसमें हम इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में विस्तार पूर्वक जाने और जाना कि इमरजेंसी कब कब लगाई गई और इमरजेंसी के क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, आगे का चैप्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अगला वीडियो देखना मत भूलना। लेकिन आपको पता है कि जाते जाते एक बात जरूर करना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो इसके लिए क्या करना है, लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना भी आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगला वीडियो जो है आपको प्राप्त नहीं होगा। कोई टॉपिक भी आप देखना चाहोगे तो अगर आप नाम लिखोगे, रिसर्च करोगे तो वो आपको टॉपिक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो सब्सक्राइब में आप जब जाओगे तो वहाँ पर देखोगे कि वीडियो का ऑप्शन आता है, वहाँ पर सारे वीडियो आपको जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर द्वारा जो डाला गया है वो टॉपिक के हिसाब से आप अपना सेव करके जो है इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च को त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।